السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حاجی صاحب؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر ہادی حسن. میں کانپور سے آیا ہوں اچھا لیکن رہنے والا گورکھپور کا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. حاجی صاحب آپ عمرے پہ آئے ہیں، کس ٹریول سے آئے ہیں؟ ہم 7 انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریولز کے ماتحت ذریعے آیا ہوں، اور میرے ساتھ میری اماں بھی ہیں جو ریٹائرڈ ہیں 65 سال کی. ہم دونوں لوگ اسی معرفت سے آئے ہیں. اچھا. حاجی صاحب، جو 7 انٹرنیشنل ٹورس اینڈ ٹریولس کی سروسز بتائی گئی تھیں آپ سے، وہ ساری سروسز آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے کہ نہیں؟ ارے کیا میں بتاؤں، جو کچھ بھی کہا گیا تھا اس سے کئی گنا بہتر سروسز میں محسوس کر پا رہا ہوں. ایون میری اماں بہت پریشان تھی. پہلی بار انہوں نے گورکھپور چھوڑا تھا اور کہ کیسے لے کے ان کو اتنا لمبا سفر میں لے کے کر پاؤں گا، اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اور پہلی بار میرا بھی انٹرنیشنل فلائٹ تھی. مطلب مجھ کو، میں ڈیوٹی میں رہتے ہوئے کہیں جانا نہ پڑا. سب آن لائن انہوں نے مجھ سے لے لیا. سب کرا کے لکھنؤ پہ انہوں نے، سب لوگوں نے آ کے مجھ کو ملا کے ساتھ میں، کہ جس سے مجھ سے بات ہوتی تھی آصف جی، انہوں نے اپنے سگے بھائی جناب توصیف صاحب کو لگایا، اور پورا لکھنؤ سے لے کر مکہ مدینہ جتنی قدم قدم پہ ساتھ چل کے، ایک ہوتا ہے کہ لیڈ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ساتھ دینا. میں 6 دن میں، اور میں میری ضعیف اماں جو ہیں 4 عمرہ ماشاء اللہ کمپلیٹ کر پائیں. کیول توصیف حافظ صاحب کی ماتحت سویرے 4 بجے اٹھ کے تہجد سے لے کے اشراق تک ساتھ نماز پڑھوانا، مطلب دینی اعتبار سے بھی، اور ٹریول میں جو ایجنٹ کے دائتو ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بخوبی ماشاء اللہ نبھایا. اور رہی بات سویدھاؤں کے ساتھ ساتھ، سب سے زیادہ میں پریشان کھانے کو لے کے تھا، کیونکہ اماں ہماری ویجیٹیرین تھیں، اور سعودی میں یہ تھا کہ اور کبھی ہوٹل کی کھائی نہیں تھی. ان کو لگتا تھا کہ 2 دن ہوٹل کا کھائیں گے میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور 10-12 دن 15 دن کا سفر ہے اور کیسے کر پائیں گے. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی کھانا ایسا ہے ہم خود بنائیں گے، ایسا کوئی سویدھا دے دیں. تو انہوں نے ایک دم اطمینان دلوایا کہ کھانے کو لے کے آپ ایک دم ٹینشن نہ لیں، گھر کا ہی طرح کھانا ہوگا، اور ایون جو آپ کہیں گے وہ بن جائے گا اس کا. آپ ایک دم، اور واستو میں ویسے ہی اترا. مجھ سے تو زیادہ فیڈ بیک اگر میری اماں کی لی جاتی، اتنا بہتر دعاؤں سے نوازتی 7 انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹریول کو. اور اصلی بات ضعیف آدمی ہی محسوس کر کے بتا پاتا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی طرح سے تھوڑی بہت پریشانی پلس مائنس سفر کے کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک ضعیف عورت جو ہیں، پہلی بار جنہوں نے ٹرین بھی شاید 1 آدھ بار پکڑی تھی، انہوں نے اتنا دور فلائٹ کے سفر سے لے کے سارا کچھ زیارت سے لے کے عمرہ طواف کر کے ہر قدم قدم پہ یہ 7 انٹرنیشنل ٹور کے جو پروپرائٹر ہیں ہمارے توصیف حافظ صاحب، انہوں نے دیا. میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ ان کو اور ایسے ہی خدمت کرنے کا، حاجی لوگوں کا اور درجہ بلند کرے، جس سے کہ آنے والے لوگ بھی لابھ اور اس سے لے پائیں، جس سے آمین. کہ ہر کوئی، کیونکہ میکسیمم میں جانتا ہوں ہم لوگ جس بیلٹ سے آتے ہیں، جیون میں ایک بار کر پاوے وہی بہت بمشکل ہو پاتا ہے. تو ایک بار میں اتنا کچھ وہ کر جائے، اس کو کہیں سے پریشانی نہ ہو. یہ مطلب مارکیٹ میں تو بہت سے اشتہار آتے رہتے ہیں جہاں جاؤ وہاں، لیکن میرے تو نظریہ ایجنٹ کے پرتی بدل گیا. جیسے ایک ہوتا نا کہ ایجنٹ کہا ہے تو 25% صحیح ہوگا، 50% صحیح ہوگا، لیکن جو یہاں پہ میں نے محسوس کرا کہ 100% سے اوپر بھی اگر کوئی ہوتی تو میں کہہ دیتا تو اس سے بہتر سویدھائیں یہاں دی گئی ہیں. میں واستو میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا پریشانی کہ ایک بوڑھی ماں کے ساتھ میں آیا ہوں بنا کسی اور
महिला औरत की, और इतनी सहूलियत मिली, और एक ज़ईफ़ को कैसे कैसे उन्होंने कराया। इवन मुझ जैसे इंसान को भी उन्होंने व्हील चेयर पे कई बार सही के लिए लेके गए। ये वास्तव में बहुत बेहतरीन था, मैं जितना कहूँ कम है। अच्छा, जो मक्का और मदीना का डिस्टेंस था हरम शरीफ का। हाँ, तो जितना भी उन्होंने बताया था कि मगर होटल के या तो हरम शरीफ से डिस्टेंस या मक्का से मदीना का डिस्टेंस, जिस ट्रैवल से जैसे कहे थे एज सच वैसे ही उतरा है। माशाअल्लाह। इवन कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवाया था उसको भी। जैसे मेरे पास समय कम था, टूर की जो फुल ट्रिप थी उससे थोड़ी 3-4 दिन पहले मुझे जाना था, तो उसको भी उन्होंने पूरी तरह से जैसे मैंने कहा मेरे हिसाब सहूलियत को देखते हुए उन्होंने अलग से कराई। और टूर मक्के से मदीने का जिस गाड़ी जिस मार्फत से जाने का था, और या लोकल मक्के की जियारत इन्होंने जो जो जगह पे करी, एक प्रोफेशनल एक गाइड बढ़िया लगाया था उन्होंने पहले दिन उम्रा कराने के लिए। फिर जियारत में एक बढ़िया पाकिस्तानी मौलाना थे जिन्होंने एक एक जगह को, जिसका हम लोग नाम तक नहीं सुने थे, वहाँ की क्या फजीलत है, वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या क्या घटी थी चीज़ें, वो सब उन्होंने एक एक जगह पे, और हर किसी को साथ लेके, हम ही को नहीं। मान लीजिए हम थोड़ा बहुत अपने से भी गूगल करके समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सी ज़ईफ़ महिलाएं इसमें आई हुई थी जिनको पहली बार सफ़र करने का था, और उन्होंने इतनी बढ़िया से करा। एक ऐसे अगर कोई गाइड हो जाए तो अकेले लोग निकल पड़े सफ़र पे। जैसे पहले होता था कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि हमको फीडबैक या फिर उस तरह का जो हमको सदारत चाहिए एजेंट के मार्फत वो मिल नहीं पाती थी। तो आदमी सोचता था 4-5 लोग होंगे तो चलेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कोई अगर अकेला ज़ईफ़ से ज़ईफ़ इंसान भी चाहे तो जाके उम्रा कर सकता है इस माध्यम से, और उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाफिज़ साहब खुद व्हील चेयर पे बैठा के खिदमत कर देते हैं। मैं तो खुद एक दिन बहुत तीसरा उम्रे में था, और हाफिज़ साहब ने व्हील चेयर लगा के मुझको सही के कुछ चक्कर करवाए। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है, और अल्लाह इनको और तरक्की दे, मैं आमीन। इसके लिए हमेशा दुआ करूँगा। अच्छा भाई साहब, जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? इरादा रखते हैं तो इतना नेक काम के लिए वादा न करें, इरादे पे तुरंत काम करें। और एक ये जरिया है, जरिए तो बहुत होते हैं, इरादा सबसे बड़ी चीज़। अगर कर लिया तो फिर आप साध से करें तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है, लेकिन करें ज़रूर, मेरा ये कहना है। और अगर इस मार्फत से करेंगे तो आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ, जो महसूस कर पाया हूँ, मेरे मार्फत से कोई कहेगा तो मैं तो 200% दावे के साथ, पूरी गवाही शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि इससे जाएंगे तो उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। खुद लगे रहते हैं, जैसे एक होता है पेशेवर आदमी लगा रहता है तो पैसा करेगा चला जाएगा, ये लोग खिदमत करने की सोच से चारों भाई लगे हुए हैं। एक लोग लखनऊ मिलते हैं, तो एक लोग मक्के में रहते हैं, अगला लोग मदीना में है। मतलब हर चैनल पे खुद चारों लोग लगे हुए हैं, और खुद प्रोपराइटर लगे और कोई तीसरा लगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये एक फैमिली की तरह महसूस करवाते हैं। लगा ही नहीं मुझको कि मेरा भाई नहीं साथ आया है, मैं खुद मुझे महसूस हर घड़ी लगा। और सबसे बड़ी बात है खाने का हर समय फ़ोन करके पूछना कि खा लिए कि नहीं खा लिए, चले कि नहीं चले, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। इवन पानी जमजम 5 लीटर वादा करा था, उन्होंने पहले दिन ही देना नहीं भूला। जैसे एक होता है कि कह दिया हम डिमांड करें तो मिले, हमें तो कुछ पता भी कुछ चीज़ें नहीं थी कि ये क्या क्या देंगे। मैं तो बस नाम सुना था, और मैं बहुत बड़ा फ़िक्र भी नहीं था ये छोटी छोटी चीज़ों का, कि जमजम भी लिखा है उसमें कि नहीं, हम तो अपने से ले सकते थे। लेकिन मुझे बिना डिमांड के हर चीज़ उपलब्ध करा देना, जो मेरे हिसाब से स्किप भी कर जाती, मेरे माइंड में हो सकता ना भी चढ़ती, या चढ़ती भी तो छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा
ऐसी सोच नहीं है कि मैं पॉइंट आउट करूं कि ये कहे थे आप ये नहीं दिए, वो चीज़ भी इन्होंने अपने से खुद कह के लॉन्ड्रिंग का कि आप हाजी साहब आप आज इस डेट को आएगा, आप अगर नहीं हैं तो मैं पर्ची बनवा देता हूँ, सामान आप मेरे कमरे में रख जाइएगा, मैं दे दूँगा। मैं किसी समय अगर धर्म में हूँ तो उन्होंने कमरे में से सामान उठा के लॉन्ड्री का दिया, प्रेस करा के उसको, मतलब मुझे तो लगता है कि जितना भी इसका हदिया है उससे कई गुना वसूल हो गया है। मुझसे ज़्यादा परेशान मेरी अहिल्या थी कि पहली बार अम्मा को लेके गए हो, और वो तो कहेगी कि तुम लोग तो रुपया रुपया सधा ही लिए हो। और वह वास्तव में बताऊं, ये तो एक नौकरी एक पैसे का जरिया है, वरना जो अखलाक जो मिल्लत जो इन्हों लोगों ने पेरेंटिंग की तरह करी वो बेशकीमती है। उसका ना ही कोई हदिया है ना ही कोई पैसा है। इन लोगों ने उससे बियॉन्ड फैमिली जो ट्रीट कराया, फैमिली की लगा ही नहीं घर से मैं बाहर हूँ, मेरे दो जुड़वा छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मुझको याद तक ना आने दिया, इतना मुझको खुद इन्होंने प्यार दिया कि मैं फैमिली वास्तव में कुछ दिन के लिए भूल गया कि इतने छोटे छोटे बच्चों को, वरना मैं कभी भी कहीं भी ट्रैवल करता था इंडिया के अंदर, पहली बार है बाहर, तो लगता था फैमिली की तरफ दिमाग जा रहा है, यार भागना चाहिए भागना चाहिए। कुछ हरम शरीफ का अपना दिली लगाव और कुछ इन लोगों का पेरेंटिंग की याद, फैमिली की याद ही नहीं आने देती है। लगता ही नहीं है कि हम जो है छोटे बच्चे छोड़ के पीछे आए हुए हैं। इतना इन लोगों ने मुझको, या कहीं से लगा ही नहीं कि भाई की कमी लग रही है, माँ की कमी लग रही है, या फिर कहीं से गाइड की कमी लग रही है। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खिदमत करा। मेरे पास तो बहुत से अल्फाज कम हैं, मैं बहुत वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी बढ़िया इन लोगों ने करी कि अगर और बढ़िया मेरे पास वो कैप्स या अल्फाज होते तो मैं और अच्छा इन लोगों को फीडबैक तो कर पाता। लेकिन जितने शब्द मेरे पास हैं उसका बस भाव यही है अंदर का कि बहुत बेहतरीन खिदमत इन्होंने, और एक दिन नहीं 15 दिन लगातार एक अटेंशन के साथ वर्क कर पाना। मैं भी पेशेवर हूँ, पेशा हर कोई पैसा करता है, कितना ईमानदारी से मैं करता हूँ वो मैं जानता हूँ, या फिर कोई कितनी ईमानदारी से करता है, तो कहीं न कहीं बहुत बेहतर पैसा तो है ही है, लेकिन बहुत बेहतर खिदमत इन्होंने करा। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।